Welcome all. This is our lecture 10, and in this lecture we will cover the topic computer memory. In previous lectures we have learned about our two computer hardwares, namely input devices, output devices, and another one most important, most common is computer memory. We will cover this topic in today's lecture. So let's start with the computer memory. Memory is like our human brain where we can store our memorable things, our डे टू डे वर्क्स. ऐसे ही हमारा कंप्यूटर है जो डेटा को स्टोर करता है कंप्यूटर मेमोरी में. ओके. कंप्यूटर की मेमोरी जो है आज के टाइम में, बिफोर सम टाइम्स मैन जब हमने कंप्यूटर जनरेशन पढ़ी तो हमने देखा कि फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर की जो मेमोरी थी वो स्लो थी, वो छोटी थी, कम थी. ठीक है. अब जैसे जैसे कंप्यूटर जनरेशन ने ग्रो किया ऐसे ऐसे हमारा जो मेमोरी साइज है कंप्यूटर का वो हमारा इंक्रीज होता हुआ जा रहा है और आज हमारे पास टीबीज और पेटाबाइट्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ memory is available. Even your cell phones, your smartphones having 256 GBs or more. Now the memory mainly divided into two parts. That is here now we will cover the types of computers, or we can say we will divide our computer memory in two parts, that is primary memory and secondary memory. As the name suggests, primary memory means जिस मेमोरी को कंप्यूटर में अगर कुछ काम करना है तो सबसे पहले कंप्यूटर जिस मेमोरी को प्रीफर करेगा वो हमारा होगा प्राइमरी मेमोरी. आफ्टर दैट this will prefer secondary memory. Our primary memory in any computer will fix, but the secondary memory we can extend as per our needs. Let's check our computer memory. अगर आपसे कंप्यूटर मेमोरी के बारे में पूछा जाए या उनके बारे में बात की जाए तो आप ये डायग्राम जरूर बनाएंगे. कंप्यूटर मेमोरी divided in two parts: primary memory, secondary memory. Primary memory further divided in two parts: RAM and ROM. Random access memory, read only memory. This is RAM is volatile and ROM is non volatile. Volatile means where the data is not permanent. जहाँ डेटा, जिस मेमोरी का डेटा परमानेंट नहीं है वो वोलेटाइल. आप इस बात को ध्यान रखेंगे. जो नॉन वोलेटाइल है इट मीन्स वहाँ डेटा आपका परमानेंटली स्टोर रहेगा. Volatile means, I am repeating again, volatile means where the data is not permanent. When the light is gone or any something mishappening has happened, your data will be lost. Okay, means अगर हम और सिंपली पढ़ना चाहें तो जान सकते हैं कि वोलेटाइल का मतलब जहां आपका डेटा परमानेंट स्टोर नहीं होगा. Further, RAM is divided in two parts: SRAM means static RAM and DRAM dynamic RAM. Static RAM and dynamic RAM. ROM is further divided in here two more parts. This is PROM, EPROM and EEPROM. One more is simply masked random access memory. Other term is also there. PROM means programmable read-only memory. EPROM means erasable programmable read-only memory. EEPROM means electrically erasable programmable read-only memory. Okay. Other side we have secondary memory. Secondary memory, our hard disk, our memory cards, SSD cards, our floppy disk, magnetic tapes, all these things, all these type of memory come under the secondary memory type.
प्राइमरी मेमोरी एज यू हैव सीन जो हमारे इंस्ट्रक्शन सेट को होल्ड करेगी, और जो हमारा मेन कंप्यूटर है जो सबसे पहले जिस मेमोरी को चेक करता है, सबसे पहले जिस मेमोरी को चेक करेगा वो हमारा प्राइमरी मेमोरी। और हम यूँ कहें कि जो करंट में कंप्यूटर वर्क करता है, जो कंप्यूटर में कंप्यूटर काम करता है, वो हमारा रैम में करता है। इट मीन्स अगर आपको कुछ भी काम करना है, आपको कोई वर्ड फाइल बनानी है, तो सबसे पहले वो आपकी पर्टिकुलर एप्लीकेशन कहाँ रन होगी, सबसे पहले वो रैम में लोड होगी, उसके बाद आपको डिस्प्ले होगी। ठीक है, as we have seen, the primary memory is also divided in RAM in two parts, that is RAM and ROM. This is our RAM example and this is our ROM example. So this is our ROM. Here are some characteristics of main memory. These are semiconductor memories. This is called main memories. Use volatile memory. Volatile memories, RAM is volatile. Okay, only RAM is volatile. Data is lost in case of power is switched off. जब भी आपकी पावर जाएगी तो आपका आपका डेटा लॉस हो जाएगा. As you can check in this type, it is very working memory of computer. It means जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले कंप्यूटर इसी मेमोरी को काम करता है, और आपको कंप्यूटर कुछ भी वर्क करना है तो सबसे पहले वो एप्लीकेशन आपकी रैम में लोड होती है, उसके बाद चलती है. तो इसलिए कहा गया कि सबसे वर्किंग मेमोरी है, फास्टर देन सेकेंडरी है. ठीक है, ये कंप्यूटर कैन नॉट रन, और कंप्यूटर हमारा फंक्शन, कोई कंप्यूटर फंक्शन नहीं कर सकता बिना रैम के. ठीक है, और अगर आपको पूछा जाए कि मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में डिफरेंस आप बताइए, तो यहाँ बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं. जैसे रैम का जो साइज है वो थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू रोम, एज कम्पेयर टू सेकेंडरी मेमोरी, सॉरी. एंड बट जो हमारी कॉस्ट है वो प्राइमरी मेमोरी कॉस्ट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी मेमोरी. सेकेंडरी मेमोरी कॉस्ट हमारी बहुत कम होती है. जैसे आपको अगर 1 GB की CD चाहिए तो आपको 10 रुपीज़ के आसपास मिल जाएगी. बट इफ़ यू वांट टू परचेज इट 1 GB रैम, देन इट विल कॉस्ट हाई, like in 1000 as well. Our secondary memory, this is non-volatile. This is non-volatile. It means here your data is permanent, but it is slower. It is, ये हमारी मेमोरी स्लो है मेन मेमोरी से. स्टोरिंग कैपेसिटी इसकी परमानेंट है और रैम से ज़्यादा है. कॉस्ट भी हमारी इसकी प्राइमरी से कम है. ठीक है, here you can check the content of the secondary memory are first transferred to the main memory and then the CPU can access it. It means अगर आपकी मेन मेमोरी में सेकेंडरी मेमोरी में कुछ भी है, सबसे पहले वो आपकी प्राइमरी मेमोरी में लोड होगा, उसके बाद CPU उसको एक्सेस कर सकता है. ठीक है, देयर मैनी एग्जांपल्स, SD कार्ड, CD-ROMs, DVD, सिक्योर डिजिटल्स, SD कार्ड्स जिन्हें आप बोलते हैं, तो हमारे सेकेंडरी मेमोरी में आएंगे. Here are some characteristics of secondary memory. Optical memory, these are CD, DVDs. This is called a बैकअप मेमोरी, हम इसको बोलते हैं. नॉन वोलेटाइल मेमोरी हमारे पास ये डेटा हमारा परमानेंट सेव होता है इसमें. ठीक है, यूज फॉर, ये हमारा डेटा हमारा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा वी कैन स्टोर इन सेकेंडरी मेमोरी. कंप्यूटर में रन विदाउट सेकेंडरी मेमोरी. इट मीन्स हम लोग कंप्यूटर को बिना सेकेंडरी मेमोरी के भी रन करा सकते हैं, but this is slower than primary memory. Here you can mention one more, the cost. The cost is low. Secondary memory cost is
low as compared to primary memory. Here another type of memory is available, cache memory. Cache memory is very high speed semiconductor memory which can speed up the CPU, or we can say it act like a buffer where CPU and between CPU and main memory. You can check it. It acts like a buffer between CPU and main memory. It is sold to those parts of data programs which are mostly, जैसे आप फ्रीक्वेंटली बहुत सारी चीज़ें आप कंप्यूटर में यूज़ करते रहते हैं, तो वो डेटा हमारा उसकी एक इन्फॉर्मेशन हमारी कैच मेमोरी में अवेलेबल रहेगी। जैसे आप अपने कंप्यूटर को कोई भी ओपन करिएगा और उसका रिसेंट फील्ड हमारा एक होता है, आप रिसेंट फील्ड में जाके देखिएगा तो हमारे जो मोस्टली यूज़ करते रहते हैं तो उनकी इमेजेस, उनका एक पाथ हमारा रिसेंट में आपको ऑलरेडी अवेलेबल मिलेगा। दिस कॉल्ड ना कैच मेमोरी। सबसे पहले मेन मेमोरी से पहले कंप्यूटर हमारा सर्च कराता है कैच मेमोरी को। अगर वो हमारा कैच में अवेलेबल डेटा तो वहाँ से उसको फैच कर लेता है। द पार्ट ऑफ डेटा and programs are transferred from the disk to cache by the operating system where CPU can access them. ओके, सबसे पहले वो कैच में लोड होगा, उसके बाद CPU से एक्सेस कर सकता है। दिस कॉल्ड कैच मेमोरी। दिस इज द एडवांटेज ऑफ कैच मेमोरी। कैच मेमोरी इज फास्टर, ये हमारी सबसे फास्टर है, ये मेन मेमोरी से फास्टर मेमोरी है। इट कंज्यूम्स लेस एक्सेस compared to main memory. It stores programs that can be executed within a short period of time. जो हमारे पास अवेलेबल है हमारे, और जो डेटा है हमारा वो शॉर्ट स्टोर्स डेटा फॉर टेम्परेरी यूज़, ये हमारा टेम्परेरी यूज़ के लिए यूज होता है। जो हमारा डिसएडवांटेज है, जो कैच मेमोरी हमारी है उसकी लिमिटेड कैपेसिटी है एंड इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। ये हमारी मेन मेमोरी से भी एक्सपेंसिव है। ठीक है, so this is all done in this lecture. Prepare your good quality notes and be in learning mode always.